Hello friends, welcome to my channel Dihira Di English. Today we are going to learn English through stories. So without any further delay, let's get started. Today's story is 17 Camels and 3 Sons. Long ago, there lived an old man with his 3 sons in a deserted village located in the vicinity of a desert. बहुत समय पहले एक बूढ़ा आदमी अपने 3 बेटों के साथ रेगिस्तान के आसपास के क्षेत्र में एक गांव में रहता था. He had 17 camels and they were the main source of his income. उसके पास 17 ऊंट थे और वे उसकी आय का मुख्य स्रोत थे. He used to rent out camels as a means of shipping in the desert. One day he passed away. He had left a will leaving his assets for his 3 sons. वह ऊँटों को रेगिस्तान में शिपिंग के साधन के रूप में किराए पर दिया करता था. एक दिन उसका देहांत हो गया. उसने एक वसीयत और अपनी संपत्ति अपने बेटों के लिए छोड़ी. After the funeral and the other obligations were over, the 3 sons read the will. अंतिम संस्कार व अन्य दायित्व पूरा करने के बाद तीनों बेटों ने वसीयत पढ़ी. While their father had divided all the property he had into 3 equal parts, he had divided the 17 camels in a different way. जिसमें उनके पिता ने संपत्ति को 3 बराबर भागों में बांट दिया था. उन्होंने 17 ऊँटों को अलग तरह से तीनों में बांटा था. They were not shared equally among the 3 as 17 is an odd number and a prime number which cannot be divided. उन 17 ऊँटों को तीनों में बराबर नहीं बांटा जा सकता था क्योंकि 17 एक विषम संख्या है और एक अभाज्य संख्या को विभाजित नहीं किया जा सकता. The old man had stated that the eldest son will own half of the 17 camels, the middle one will get 1/3 of the camels, and the youngest one will get his share of camels as 1/9. बूढ़े आदमी ने वसीयत में कहा था कि सबसे बड़े बेटे को ऊँटों का आधा भाग मिलेगा, बीच वाले बेटे को ऊँटों का 1/3 भाग मिलेगा और सबसे छोटे बेटे को ऊँटों का 9वां हिस्सा मिलेगा. All of them were stunned to read the will and question each other how to divide the 17 camels as mentioned in the will. वसीयत पढ़कर सभी दंग रह गए और एक दूसरे से प्रश्न करने लगे कि वसीयत में बताए अनुसार ऊँटों को कैसे विभाजित किया जाए. It is not possible to divide 17 camels and give half of the 17 camels to the eldest one. It is not also possible to divide the camels for the other 2 sons. 17 ऊँटों में से आधे बड़े बेटे को देना और आधों को बांटना संभव नहीं है. अन्य और 2 बेटों को भी ऊँट बांटना संभव नहीं था. They spent several days thinking of ways to divide the camels as mentioned in the will, but none could find the answer. उन्होंने कई दिन वसीयत में बिताए अनुसार ऊँटों को विभाजित करने के तरीकों के बारे में सोचते हुए बिताए, लेकिन किसी को भी इसका उत्तर नहीं मिला. They finally took the issue to the wise man in their village. The wise man heard the problem and instantly found a solution. He asked them to bring all the 17 camels to him. वे अंततः इस मुद्दे को अपने गांव के बुद्धिमान व्यक्ति के पास ले गए. बुद्धिमान व्यक्ति ने समस्या सुनी और तुरंत उपाय पाया. उसने सभी 17 ऊँटों को उनके पास लाने को कहा. The sons brought the camels to the wise man's place. The wise man added a camel owned by him and made the total number of camels 18. बेटे ऊँटों को बुद्धिमान व्यक्ति के यहाँ ले आए. बुद्धिमान व्यक्ति ने अपने स्वामित्व वाला एक ऊँट जोड़ा और ऊँटों की कुल संख्या को 18 किया. Now he asked the first son to read the will. As per the will, the eldest son got half the camels, which now counted to 18 divided by 2 is equal to 9 camels. The eldest one got 9 camels as his share. अब उसने पहले बेटे को वसीयत पढ़ने को कहा. वसीयत के अनुसार ज्येष्ठ पुत्र को आधे ऊँट मिलेंगे जो अब 18 भाग 2 बराबर 9 ऊँट गिने गए. सबसे बड़े ऊँट को उसके हिस्से के रूप में 9 ऊँट मिले. The remaining camels were 9. अब 9 ऊँट बचे थे. The wise man asked the second son to read the will. He was assigned 1/3 of the total camel. बुद्धिमान व्यक्ति ने दूसरे बेटे को वसीयत पढ़ने को कहा. उसने कुल ऊँट का 1/3 हिस्सा सौंपा गया था. It came to 18 divided by 3 is equal to 6 camels. The second son got 6 camels as his share. Total number of camels shared by the eldest son 9 plus 6 is equal to 15 camels. यह 18 भाग 3 बराबर 6 ऊँट था आया. दूसरे पुत्र को उसके हिस्से के रूप में 6 ऊँट प्राप्त हुए. दोनों बड़े बेटों को कुल 15 ऊँट प्राप्त हुए. The third son read out his share of camels. 1/9 of the total number of camels is equal to 2 camels. तीसरे बेटे ने वसीयत पढ़ी. उसमें उसे ऊँटों का 9वां हिस्सा मिलना था. The youngest one got 2 camels as his share.
सबसे छोटे बेटे को उसके हिस्से के रूप में 2 ऊँट मिले। टोटली देयर वर 9 + 6 + 2 camels शेयर्ड बाय द ब्रदर्स विच काउंटेड टू 17 camels। कुल मिलाकर 9 + 6 + 2 ऊँट तीनों भाइयों में बटे हुए थे, जिनकी गिनती 17 ऊँटों तक थी। नाउ द 1 camel added by the wise man was taken back. The wise man solved this problem smartly with his intelligence. अब बुद्धिमान व्यक्ति ने अपने द्वारा जोड़ा गया एक ऊँट वापस ले लिया। बुद्धिमान व्यक्ति ने इस समस्या का समाधान चतुराई से अपनी बुद्धि के साथ किया। इंटेलिजेंस इज नथिंग बट फाइंडिंग अ कॉमन ग्राउंड टू सॉल्व एन इश्यू। बुद्धिमत्ता और कुछ नहीं बल्कि एक खोज है किसी मुद्दे को सरलता से हल करने की। मोरल ऑफ द स्टोरी इज एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सॉल्यूशन। हर समस्या का समाधान होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।